Department of Mathematics and Government PG College welcomes you in online classes, and today's topic is hashing. Basically, hashing is a transformation of a string of character into a usually shorter fixed length value or key that represent the origin string. Means basically hashing is used to index and retrieve item in a database, and it is a very faster way to find any elements in an array as well as in linked list. And we have an also used for encryption, and where we pass the secret message to some other station, so we are using the hashing key. सपोज यहाँ पे एक एरे मेमोरी लोकेशन आपको दिया हुआ है 0 1 2 3 4, तो मीन्स दिस इज फॉर्म ऑफ हैश टेबल एंड ऑफ साइज m is equal to 5, and a hash code is generated by using a key which is a unique value is known as hashing. So why we do need hashing? Because suppose in our college we have 100 faculties, and we have to give 3-digit key to each employee for the security purpose. Now we want to give a key such that they can store their data, personal data, to that particular memory location. But if we give the location number according to 3-digit, means a 3-digit number is from 0 0 0 0 to 999, so means we have to reserve 0 0 0 to 999 addresses for this purpose. तो anybody can use anyone as a key, कोई भी उसको यूज कर सकता है, तो there is lot of wastage of memory. So in order to solve this problem, जो हमारी मेमोरी लोकेशन की ज़्यादा स्टोरेज, बिकॉज डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में हम ये पढ़ते हैं कि वी हैव टू मिनिमाइज द लोकेशन, मिनिमाइज द टाइम, as well as minimize the complexity, minimize the basically uh, what you call time schedule. And in order to solve this problem, we use hashing, which will produce a smaller value of index of the hash table corresponding to key of the user. So what is hash table? अभी हमने पीछे देखा. Hash table is type of data structure which is used for storing and accessing data very quickly, and insertion of data in a table is based on the key value. Means हमें ऊपर index दिया होगा, key value दी होगी, उसके according हम पूरा data स्टोर कर सकते हैं. जैसे इन कॉलेज सपोज वी हैव गिवन ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स रोल नंबर और आईडी नंबर. फ्रॉम दैट आईडी वी कैन नो each and everything about a particular students. So this key is we store in a hash table defined with some key. And if you search in a hash table with a few key comparison, we can find the details of any person. And searching time is dependent upon the size of the hash table. And mapping between the item and the slot where that item belong in the hash table is called hash function. Means index की होगी और एक डेटा स्टोर होगा, बट जो मैपिंग है बिटवीन एन आइटम एक्सेस करने की और इंडेक्स की दैट इज नोन एज हैश फंक्शन. हैश फंक्शन से उसको हम डिनोट करेंगे for accessing the data, and the integer returned by the hash function is called hash key. तो यहाँ पे जैसे हमने की एलिमेंट लिया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं 8 3 13 2 4 70, यहाँ पे ये की एलिमेंट है. सपोज हमने एक हैश फंक्शन बनाया एच एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब लीनियर फंक्शन है, सीधे सीधे अगर जो वैल्यू है वो सीधे स्टोर हम कर रहे हैं. जैसे 8 वैल्यू है तो ये हैश फंक्शन 8 में वैल्यू स्टोर हो गई, 3 है वो 3 में स्टोर हो जाएगी, 13 है ये नीचे यहाँ 13 बनाएंगे 13 में हो जाएगी, 2 है 2 में हो जाएगी. But what happens when we store putting the value of 70 in hash table? तो 70 जब हम hash table में करेंगे तो we have to make 70 locations. तो it is very difficult, lot of memory wastage. And इससे क्या होगा, हमारा मेमोरी वेस्टेज होगा और एक एक को चेक करने में हैश टेबल में भी दिक्कतें आएंगी. सो वी इंट्रोड्यूस अ न्यू हैश फंक्शन. तो इसकी बजाय हम क्या करेंगे, हैश फंक्शन एक नया इंट्रोड्यूस कर देंगे. हमने नया हैश फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, एक्स मॉड टेबल हैश साइज. मीन्स एक्स मॉड, जैसे टेबल हैश साइज हमने 0 से 9 वाला हैश लिया है तो 10 हमने कर दिया, तो एक्स मॉड 10.
हमने एक नया फंक्शन जनरेट कर दिया। बट अब इसमें क्या होगा, अगर हमें सपोज 8 का निकालना है तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 मॉड 10। 8 मॉड 10 का मीन्स 10 से 8 तो छोटा ही है, तो 8 हम डायरेक्टली 8 में स्टोर कर देंगे। 3 में स्टोर हो जाएगा। लेकिन जो 10 से बड़े हैं, मॉड का आपको प्रॉपर्टीज पता है, फंक्शंस पता है, तो अगर जो बड़ा है जैसे 13 है, 13 मॉड 10, 13 मॉड 10 का मतलब क्या हो गया, 10 से डिवाइड करोगे 13, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 3 ये कहाँ स्टोर होगा, 3 में स्टोर होगा, और ये 3 क्या है, ये भी 3 में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉड फंक्शन से ये होने को तो ये सारे स्टोर हो जा रहे हैं, बट इसमें क्या हो रहा है, कोलिजन आ जा रहा है, कोलिजन हो रहा है। फॉर वन मोर एग्जाम्पल, जैसे हम देते हैं आपको, सपोज इन एमएससी यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट वर्क, and in a college if many in a class you have 100 students, so what we and we have only 5 faculties in our department, mathematics department. So what we call कि आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है, आप उसको अपने रोल नंबर को मॉड से डिवाइड कर दीजिए, और जो रिमाइंडर आएगा और फैकल्टी को हमने असाइन कर दिया, एचओडी को 0 दे दिया, एंड नेक्स्ट वन को 1 दे दिया, नेक्स्ट फैकल्टी को 2 दे दिया, नेक्स्ट को 3 दे दिया, एंड वी हैव टू असाइन द कोड 0 1 2 3। देन व्हाट हैपन्स, हमने कह दिया कि रोल नंबर से आप डिवाइड कर लीजिए, एंड जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका उसके अंडर में यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट वर्क। तो व्हाट हैपन्स व्हेन वी डिवाइड द नंबर, तो उसमें क्या बचता है, आपका रिमाइंडर जो बचता है, रिमाइंडर आपके सेम बचता है, तो एक ही फैकल्टी के अंडर में 8-10 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, एक ही कॉलम है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों सेम कॉलम को बिलोंग कर रहे हैं। तो सेम कॉलम को बिलोंग करने मतलब वो टाइम स्लॉट में, सेम टाइम स्लॉट में आ रहा है, और वो कोलिजन अकर कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हमें दूर करना है, जो कोलिजन वाली प्रॉब्लम आ रही है, मींस टू और मोर एलिमेंट मे हैव सेम हैश वैल्यू नोन एज कोलिजन। तो देयर आर टू मेथड्स यूज्ड टू इंप्लीमेंट हैशिंग। हमारे पास दो मेथड है, फर्स्ट वन इज हैशिंग विद ओपन एड्रेसिंग, एंड सेकंड हमारे पास है हैशिंग विद चेनिंग। इन दो मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड ये एक हैश टेबल बनाया हुआ है, 0 1 2 3 4, एंड 5 यहाँ आ गया, 54 यहाँ आ गया, स्टोर हो गया। अगर हम इसमें मॉड 10 वाला हैश वैल्यू वाला फंक्शन यूज करते हैं, कोई और फंक्शंस भी हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें कई बार लोड फैक्टर हमें निकालना आता है। हैश टेबल में लोड फैक्टर क्या होता है, तो लोड फैक्टर इज इक्वल टू नंबर, अल्फा से हमने डिनोट किया, कई जगह लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम इन अ टेबल अपॉन साइज। नंबर ऑफ आइटम कितने इनबिल्ट हैं इसमें, इनफिल्ड हमने किए हैं 1 और 2 आइटम, तो हेयर 2/5। तो ये इसका लोड फैक्टर हो गया इस हैश टेबल का। अब हम बात करते हैं हैशिंग विद ओपन एड्रेसिंग। हमने बताया कि इंप्लीमेंट करते हैं ओपन एड्रेसिंग। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑल हैश टेबल में डायरेक्ट हमारे पास स्लॉट है, और इसमें हम डायरेक्ट हम kth पोजीशन में जो एलिमेंट फाइंड आउट करना है उसको kth पोजीशन में डालेंगे। अभी जो हमने पहले वीडियो में, पहले पार्ट में हमने ये देखा था कि जो आपको डायरेक्ट आप एलिमेंट डाल रहे हैं, 3 में डाल रहे हैं, 8 में डाल रहे हैं, 70 में डाल रहे हैं, तो मेमोरी वेस्ट हो रही है। ये वही वाला केसेस है कि ये हैशिंग विद ओपन एड्रेसिंग कि के पोजीशन ऑफ एलिमेंट स्टोर के पोजीशन इन एन एरे। तो इन ओपन एड्रेसिंग द लोड फैक्टर अल्फा कैन नेवर एक्सीड 1। लोड फैक्टर कभी भी 1 से ऊपर नहीं हो सकता। And the process of examining the location in the hash table is called probing, and that is known as probing. And अब हम जो नेक्स्ट केस करते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे ओपन हैशिंग विद चेनिंग के। इन हैशिंग विद चेनिंग द एलिमेंट इज स्टोर इन अ हैश टेबल। हमने कहा 0 1 2 m-1, और इसको हम हैश्ड इनटू द सेम स्लॉट। वन और की जब वो हैश मिल जा रही थी, सेम कीज आपकी एक ही स्लॉट में आ रही थी, तो उसको हमने कोलिजन बोल दिया था कि जहां पे कोलाइड हो रहे थे। इन सच केसेस यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी इंसर्ट ए लिंक लिस्ट एसोसिएटेड टू विद दैट स्लॉट। हम उसके आगे लिंक लिस्ट लगा देंगे, और इस केस में जो लोड फैक्टर होता है हमारा अल्फा से, जिसको हमने बताया था, दैट इज द कांस्टेंट जनरली लेस देन 1 होता है।
तो यहाँ पे ये हम जो बात की थी कि यहाँ पे की एलिमेंट है हैश फंक्शन x mod 10 है। अब ये 8 तो आपका सीधे आ गया, लेकिन जो 13 या जो ओवरराइट हो रहा था उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे लिंक लिस्ट लगा दी। मींस हैश टेबल यही है, फंक्शन वही है। यहाँ पे 8 लिंक लिस्ट में मैंने बताया था आपको, जस्ट लाइक का बोगी ऑफ ट्रेन्स, मीन्स ट्रेन एक दूसरे से बोगी आपस में कनेक्टेड होती है। फर्स्ट बोगी के लास्ट में एक पॉइंटर होता है जो अगली बोगी को इंडिकेट करता है। सिमिलरली यहाँ पे ये लिंक लिस्ट में एक ये हमने लिख दिया 8, यहाँ पे स्लैश मतलब ये खत्म हो गया, तो हमने इसको यहाँ पे ये एंड हो गया, एक जगह ही था। लेकिन जब हम देख रहे हैं 3 भी 3 में जाएगा, 13 भी 3 में जा रहा है, दोनों ये कोलाइड हो रहे थे। इसलिए हमने क्या कह दिया, जब हमने 3 भेजा यहाँ पे तो ये 3 लिंक लिस्ट में लगा दिया एंड इसके एरो बना दिया कि इसके आगे भी कुछ है। देन 13 वाला एलिमेंट आ गया, इसके एरो लगा दिया, क्योंकि अगला भी कोई नंबर होगा तो वो भी आगे स्टोर हो सकता है। इससे सिंगल फंक्शन के बाद आपने लिंक लिस्ट यूज करके ये कोलिजन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, और मेमोरी भी इसमें कम यूज हो रही है। और it मतलब all data stored in a linked list, and even searching is also very faster in this case. And this is the chaining and open addressing जिसमें kth एलिमेंट kth स्लॉट में जाएगा, एंड दिस ऑल अबाउट द हैशिंग। तो हैशिंग आपको समझ आ गया होगा। ये वीडियो कैसे लगा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट्स लिखिए, और गूगल क्लासरूम में भी ये वीडियो अपलोडेड है और आप उसमें भी कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू।